یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس جھوٹی شاعری ہے، محمد کی شاعری۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو لگائے گی ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے۔ محمد کے درد سے مجھے سکون ملتا ہے۔ غلاموں، یہ کانٹے اس کے گھر کے سامنے بچھا دو۔ یہ کہانی ہے اس انسان کی جو رسول اللہ کو بھرے بازار میں رسوا کرتا۔ مکہ والو، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ دیوانہ ہے، دیوانہ۔ وہ دیکھو پاگل آدمی۔ یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اکثر مسلم فیملیز میں بچوں کو قرآن کا رٹا لگوا دیا جاتا ہے، مطلب پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن چاروں کل اور سورہ لہب یاد ہونا چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ شاید اسی وجہ سے آج قرآن تو ہمارے گھروں میں ہے لیکن دلوں میں نہیں ہے۔ کیا ہے سورہ لہب؟ سنا ابو منال، اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر سورہ نازل کی ہے۔ خدا کی پناہ ہے۔ کون تھی ام جمیل جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا؟ ابیہ باجی، سنا آپ نے؟ کون سی بات؟ ام جمیل کا ہار اس کے گلے کی رسی بنے گا آخرت میں۔ اور ایسا کیا کر دیا ان دونوں میاں بیوی نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابو لہب کا نام لے کر انہیں کرٹیسائز کیا؟ اس کا اللہ ہمیں آگ کا عذاب دے گا۔ کہتا ہے میں لکڑیاں اٹھاؤں گی اپنے سر پر۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیسے یہ صورت لیونگ پروف ہے قرآن کے میراکلس ہونے کا، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورہ لہب مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب ابو لہب نے ساری حدیں پار کر دیں۔ اللہ کے نبی کو وہ پریشان کرتا، انہیں گالیاں دیتا اور بھرے بازار میں رسوا کرتا۔ میرے بھتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے اس ایک خدا کو مانو۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ تعجب ہے۔ مگر اس سب کی شروعات اس صبح ہوئی جب سورج کی کرنیں مکہ کی زمین کو چوم رہی تھیں۔ اونٹ ریتیلے میدان میں دوڑ پڑے تھے، کوئی صبح صبح شیشے میں خود کو نہار رہا تھا، کوئی ناشتہ کر رہا تھا، کوئی اپنے بستر پہ انگڑائیاں لے رہا تھا۔ یہاں ہاتھ جیتے جا رہے ہیں اور انہیں دن بھر بستر توڑنا ہے، اور کام ہی کیا ہے؟ اے جی، اب سوتے ہی رہو گے کیا؟ لیکن کوئی تھا جو صفا کے پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا۔ وہ پہاڑ پر کون ہے؟ محمد۔ وہ پہاڑ تھا جس پر چڑھ کے مکہ والے ایک دوسرے کو اکٹھا کرتے اور کوئی خاص بات کرتے۔ صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ کے نبی نے گہری سانس لی اور زور سے پکارا، یا صباحا۔ یہ اذان نہیں تھی، نہ ہی کسی سوداگر کی صدا تھی، یہ خطرے کی پکار تھی۔ اس کا مطلب تھا، اے لوگوں اٹھو اور میری بات سنو، تم پر یہ خطرہ آن پڑا ہے۔ لگتا ہے کوئی مصیبت آئی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے مکانوں سے، اپنی دکانوں سے، اپنی باتوں سے نکل پڑے اور پھر وہ سب صفا کے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ان سب پر ایک نظر ڈالی اور پھر ان سے ایک سوال پوچھا کہ اے لوگوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج آپ پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا آپ میری بات پر یقین کرو گے؟ تو وہ سب چلا اٹھے۔ ہاں بالکل کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ محمد ہیں۔ ان سب لوگوں کی بات سن کر اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر ان سب سے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے جو بڑا سخت ہے۔ عبادت کیجیے اس ایک رب کی جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات سن کر وہاں کی ہوا بدل گئی، ان کے چہرے پہ ایک چیخ تھا، سناٹا چھا گیا، وہ ایک دوسرے کو چہرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعجب ہے۔ یہ بات تو کیا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ اپنے خداؤں کو ناراض کر دیں۔ اور پھر ایک آدمی کھڑا ہوا جو غصے اور نفرت میں بھرا ہوا، تو چلایا، بھتیجے، تبا لکا علی ھذا جمعتنا۔ ناش ہو تیرا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا ہے؟ یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا ابو لہب تھا۔ اس
उसकी बद्दुआ आसमान से टकराकर उस पर आ गई। उसके नसीब के पन्नों में जहन्नम का अजाब हमेशा के लिए लिख दिया गया। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को यह बात नहीं बताई। स्कॉलर कहते हैं कि अगर ये सूरत इस वक्त नाजिल हो जाती तो मक्का के लोग कहते उस पर कैसे भरोसा करें, वो अपनों की बुराई करता है। असल में उस दौर में मक्का में चचा का दर्जा एक बाप के बराबर होता, स्पेशली जब सगे बाप का इंतकाल हो चुका होता। मगर वक्त गुजरता गया, अल्लाह के नबी जगह जगह घूम घूम कर उस एक अल्लाह की इबादत करने का मैसेज पहुंचाते रहे। लेकिन अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता। अब ये कौन सी नई शायरी ले आया है? यहाँ तक के बाजार के शरीफ लड़कों को वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देता और उनसे कहता कि इनको पत्थर मारो मारो मारो, लेकिन इसका जुल्म यही नहीं रुका। इसकी बीबी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची उम्मे जमील, जो कमाल की खूबसूरत औरत थी, वो नए नए तरीकों से नबी को परेशान करती। आप सब तो मक्का के बड़े सरदार हैं, फिर अहमद का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सही कहा, बॉयकॉट करो उसका। हाँ बॉयकॉट करो उसका। सही कहा, हाँ बॉयकॉट करो उसका। और हद तो जब हो गई जब इसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि वो अपनी बीवियों को तलाक दें। इन दोनों की बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया रदियल्लाहु तआला अन्हा। तुम्हारा चेहरा भी मुझ पर हराम है अगर तुमने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दिया। बाबा, हम आज ही उन्हें तलाक देते हैं। दिन शाम में ढल गए, शामें रात में ढल गईं, लेकिन अबू लहब के जुल्म में कोई कमी नहीं आई। मक्का वालों, तेरे भतीजा दीवाना हो गया है, दीवाना। इसकी बात मत सुनना। और जब इसके जुल्म की इम्तिहा हद से पार हो गई तब अल्लाह ताला ने नबूवत के 10वें साल में सूरह लहब को नाजिल किया। अबू हादी, हमें वो सूरा तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तो चलिए इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज से, आसान तरीके से। तो पहली आयत है तब्बत यदा अबी लहब व तब। पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर दो बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो पूरी आयत है, ये आयत पास्ट टेंस में बात कर रही है, यानी ऐसा नहीं कि अबू लहब के हाथ टूटेंगे। असल में उसके हाथ टूट चुके उसी लम्हे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसी लम्हे उसके हाथ टूट गए। तो ये काम 100% हो चुका है, उसके हाथ टूट चुके हैं। लेकिन फिर भी अबू लहब बाज ना आया। जब ये सूरत नाजिल हुई तो वो लोगों से कहता, वो कहता है मेरे हाथ टूट गए। कहाँ टूटे मेरे हाथ? सही सलामत तो हैं। जब हम बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखेंगे तो हमें पता चलेगा वो कितनी बुरी तरह से मरा और किस तरह से ये आयत बिल्कुल सच्ची साबित हो गई। और यहाँ पर दूसरी बात नोट करने वाली ये है कि हाथों ही की क्यों बात हो रही है। ये क्यों कहा जा रहा है कि हाथ टूट गए? ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि सर टूट गया, पैर टूट गया? क्यों नहीं कहा जा रहा है? मैं कहता हूँ इसके लिए आप इस सीन को देखिए। चलिए इस सीन को फिर से एक बार देखते हैं। इस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि कैसे एक सिपाही ने, एक फाइटर ने अपने हाथों में तलवार ली हुई है और दूसरे हाथ में खुद को बचाने के लिए उसके पास एक शील्ड है, एक ढाल है। जब किसी इंसान के दोनों हाथ टूट जाएं तो क्या होगा? ना वो वार कर सकेगा, ना अपना बचाव कर सकेगा। आप खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे और हमला आप ही के ऊपर होगा। बिल्कुल इसी तरह जब अबू लहब की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि उसका माल, उसकी औलाद, उसका कनेक्शन, उसके ताल्लुक सब बर्बाद हो गए, उसके कोई काम नहीं आया। और आगे चल के जब हम देखते हैं कि जब वो मरा तो इतनी बुरी मौत मरा कि उसे कोई छूने वाला नहीं था, उसे कोई दफनाने वाला नहीं था।
कई दिनों तक उसकी लाश सड़कों पे सड़ती रही, लोग परेशान होते रहे, यहाँ तक कि उसके अपने लड़कों ने उसे छूने से, घर में रखने से मना कर दिया। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोग उल्टी कर रहे हैं। आयत नंबर 2, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना ही उसका कोई माल उसके काम आया, ना ही उसकी औलाद उसके काम आई। असल में ये आयत जवाब है उस बात का जो अक्सर अबू लहब लोगों से कहता था, अगर वो सच्चा है दे दूंगा मालो दौलत अल्लाह को और बचा लूंगा खुद को जहन्नम से। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि ये जो कसब का लफ्ज है इसका मतलब होता है कमाई के, अर्निंग के। कभी कभी लोगों के पास बहुत पैसा होता है, उनके बाप दादा कमाकर छोड़ के गए होते हैं, पर यह कसब का लफ्ज इस्तेमाल होता है अपनी कमाई के, अपनी खुद की कमाई के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, वो फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई उसकी औलाद है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी औलाद भी उसके काम नहीं आई। आयत नंबर 3, सयस्सला नारन ज़ात लहब, कि अबू लहब जहन्नम की आग में जलाया जाएगा जो भड़क रही होगी, शोलों वाली आग होगी। आयत नंबर 4, वमरातु हम्मालतल हतब, और इस आयत का मतलब है कि उसकी बीबी अपने सर पर ईंधन ढो रही होगी। ईंधन क्या? वो लकड़ियां ढो रही होगी जहन्नम के अंदर। ये काम होगा उसका, जलना तो है और साथ में जाना है, इसको जाना है, जाकर लकड़ियां लेकर आएगी और वो लकड़ियां आग के अंदर डालेगी। तो हम जब लकड़ियां आग के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? आग और भड़कती है, तो ये अपनी आग खुद भड़काएगी। मजे वाली बात तो ये है कि अल्लाह ताला यहाँ पर यह भी कह सकता था कि वो जहन्नम के अंदर जलेगी, वो जहन्नम का दाग जिंदगी भर झेलती रहेगी। ये क्यों कहा कि वो लकड़ियां लेकर आएगी? तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो जिंदगी में क्या काम करती थी। आप फिक्र ना करें, अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। तो वो इस दुनिया में अपने शौहर की नफरत को फ्यूल करती थी, बढ़ाती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने आखिरत में उसका अजाब ये रखा कि जाओ, जाकर लकड़ियां लेकर आओ और ढो अपने सर पर और अपनी आग खुद भड़काओ। और यहाँ पर एक और ज़रूरी बात कि जब भी आप इस सूरत को नमाज में रिसाइट करें तो ऐसे नहीं कि आप गए तब्बत यदा अबी लहब व तब, नहीं, ऐसे नहीं। अम्मा ये पावरफुल लफ्ज़ है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर असर है, वेट है। आप जब भी पढ़ोगे तो आपको इस पर जोर देना है। वमरातुहु हम्मालतल हतब, आयत नंबर 5, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी नारियल की छाल की रस्सी होगी। यहाँ पर फीजी दिहा का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेवर से लदी हुई हो। मज़े वाली बात यह है कि रस्सी का जिक्र क्यों, गर्दन का जिक्र क्यों? इसके पीछे की बात यह है कि ये उम्मे जमील ये खूबसूरत अपने गले में हार पहना करती थी और मक्के वालों से कहती थी, अपने नौकरों से कहती थी, आम लोगों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा। इसी वजह से यहाँ पर यह मेंशन किया गया है, उसके गले में मूज की रस्सी होगी, बल वाली रस्सी होगी, तकलीफ देने वाली रस्सी होगी, उस गले में जिसमें हर वक्त वो हार पहना करती थी। यह थी सूरह लहब की नाजिल होने की पूरी कहानी। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आज हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रिलेवेंस है, जो मैं समझा हूँ उस हिसाब से मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि यह सूरत इसलिए नाजिल हुई कि जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, और जिस तरह से अल्लाह के नबी के तरफ अबू लहब बढ़ रहा था जुल्म करने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा दर्जा अल्लाह का अज़ाब बढ़ रहा था अबू लहब की तरफ, और उसे खबर नहीं थी। अब आते हैं दूसरे रिलेवेंस की तरफ जो आज हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मियाँ बीवी एक दूसरे का साया होते हैं, दोस्त दोस्त, भाई भाई एक दूसरे का साया होते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा दोस्त किसी की चुगली करता है और कहता है कि तुझे पता है ऐसा काम हो गया। क्या बात कर रहा है? और बता। अक्सर मियाँ बीवी में ऐसा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को छोड़कर दूसरी की ज़िंदगी बड़ा झांकते हैं। अरे फलाने के लड़के ने ऐसा कर दिया, आपको पता है? तो ये जो वाइफ है, जो शौहर है, इसको क्या करना चाहिए? ये गाइड करे और कहे कि यार ऐसा ना करो,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि खाली ऐसा काम किया है, अरे उसने अपने माँ के जेवर भी बेच दिए हैं, उस बात को और लुकमा लगा देते हैं। तो याद रखिए, जब आप बुराई का साथ देते हैं तो जो अंजाम बुराई करने वाले का है वही अंजाम बुराई का साथ देने वाले का है, उसे फ्यूल करने वाले का है, उसे बढ़ावा देने वाले का है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट कर अपनी राय भी ज़रूर दें। तब्बत यदा अबी लहब व तब।